Hello everyone. Welcome you all in online teaching learning classes. Myself, Ms. Mrinali Dungre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. Today, we are going to start new subject that is Solid Waste Management CE6I. Subject code is 22605. Unit number 1 Fundamentals of Solid Waste Management. And the topic number 1.1 Introduction of Solid Waste. Now the learning outcome. First, course outcome, identify the different sources of solid waste. The program outcome of this particular topic is PO1, PO4, PO5, PO6, PO7. PO1 is a basic and discipline specific knowledge. PO4, that is engineering tools and experimentation and testing. PO5 Engineering Practices for Society, Sustainability and Environment. PO6 Project Management. PO7 is Lifelong Learning. Unit outcome. After completion of this video lecture, student will able to describe the principles of waste reduction in the given condition. Now the vision mission of the program. Vision mission of the program is that to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department M1 is imparting the modern technical skills as per the requirement of the industry to improve employability. M2 is that to develop social and environmental responsible civil engineers. M3 effective implementation of teaching learning process to benefit student. In this subject, we discuss about how to manage the solid waste, impact of solid waste on environment as well as human bodies. So first is introduction. India is a developing country where cities are growing at faster rate, and one thing is common that we can find huge number of heaps of garbage all over city. हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो कंटिन्यूसली डेवलप हो रही है, जिसके वजह से सिटीज़ में होने वाला सॉलिड वेस्ट वो बहुत फास्टर रेट में जमा हो रहा है, एंड उसी के वजह से फाइंड ह्यूज नंबर ऑफ हिप्स ऑफ गार्बेज ऑफ ऑल ओवर सिटी. इस सब चीज़ों के वजह से हम देख रहे हैं कि ह्यूज नंबर ऑफ हिप्स ऑफ गार्बेज ऑल ओवर सिटीज़ में जमा हो रहा है. Huge volume of solid waste is generated and management of solid waste is a major challenge. जैसे कि ह्यूज नंबर ऑफ मीन्स ह्यूज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट जो जनरेट हो रहा है और सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है. These solid waste generated need to be collected और यही solid waste को कलेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट करना इम्पॉर्टेंट है, एंड शैल बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली बिफोर क्रिएटिंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. कलेक्ट करना भी, उसको ट्रांसपोर्ट करना भी और उसको अच्छी तरीके से डिस्पोज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और उसके पहले ताकि वो इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, उसका एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े एनवायरनमेंट, उसके पहले हमें ये सब प्रोसेस करना है. तो ये सब्जेक्ट में हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल, डिस्पोज कैसा करना है हमें, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे. You have to see the image of solid waste. There is a huge volume of solid waste generated and management of the solid waste is a major challenge. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट यहाँ पर जमा है, अब इसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा और या फिर डिस्पोज करना पड़ेगा. तो ये सभी हम ये सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट. यू हैव टू सी द इमेज ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स वही डस्टबिन में या फिर कलेक्ट कैसे करना है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, देन डिस्पोज कैसा करना है, ये सब. यू हैव टू सी द इमेज ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लाइक दिस. एंड नेक्स्ट वी discuss about definition of solid waste and what is mean by solid waste.
The material which arises from various human activities and which is normally discarded as useless and unwanted, it is called as solid waste. अब solid waste किसको बोलेंगे? जो भी मटेरियल जनरेट होता है ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उससे, लाइक दैट विच इज़ नॉर्मली डिस्कार्डेड एज यूजलेस और अनवांटेड. हमने यूज़ तो कर लिया, अब वो डिस्कार्डेड हो गया और यूजलेस प्रोडक्ट है और अनवांटेड प्रोडक्ट है किसी भी ह्यूमन के लिए, तो उसे बोलेंगे सॉलिड वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक चिप्स का पैकेट लिया, उसे खाया, देन उसके बाद उसका पैकेट हमने फेंक दिया, तो वो क्या होगा? एक अनवांटेड एंड यूजलेस प्रोडक्ट है वो हमारे लिए, तो उसे बोलेंगे सॉलिड वेस्ट. मतलब अनवांटेड प्रोडक्ट एंड यूजलेस प्रोडक्ट विच इज जनरेटेड बाय human activities and which is normally discarded as useless and unwanted, it is called as solid waste. It is defined as a material that is a cheaper, जिसकी अभी कुछ कॉस्ट नहीं है बिकॉज हमने वो यूज़ कर लिया है और वो अनवांटेड प्रोडक्ट है, एंड थ्रो अवे दैट टू स्टोर और यूज़. See the image of solid waste. There is different types of waste is available in that particular area और उसे मैनेज किया जा रहा है लाइक दिस, जैसे कि आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंट सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट डिफरेंट टाइप्स के कौन से होते हैं? पहले तो हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक वेस्ट. Domestic waste includes all organic and inorganic refuse from residential areas. डोमेस्टिक वेस्ट उनको बोला जाएगा, उसमें ऑर्गेनिक भी रहेगा और इनऑर्गेनिक भी रहेगा. और कहाँ से? घरों से निकलने वाला कचरा, मीन्स रेसिडेंशियल एरियाज. ऑर्गेनिक वेस्ट कंसिस्ट ऑफ, अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक वेस्ट में कौन से वेस्ट रहते हैं, तो उसमें रहेगा फूड वेस्ट, पेपर, कार्डबोर्ड, रबर, प्लास्टिक एंड यार्ड वेस्ट. इनऑर्गेनिक वेस्ट में कौन से चीज़ें रहेंगे, तो वो रहेंगे मेटल, बैटरीज, ऑयल, ग्लास, बॉटल्स एक्सेट्रा. सी द इमेज ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, लाइक उसमें होगा ऑर्गेनिक होगा, जैसे कि फूड वेस्ट हो गए, पेपर, कार्डबोर्ड एंड ऑल, और इनऑर्गेनिक वेस्ट भी वहाँ पर होंगे, जैसे कि मेटल, बैटरीज, ऑयल, ग्लास, बॉटल एक्सेट्रा. Now next we have commercial waste. Commercial waste is generated from commercial sources like a store, offices, warehouses, etc., which consist of a large number of the paper, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, ग्लास, पैकेजिंग मटेरियल एक्सेट्रा. अब कमर्शियल वेस्ट कैसे जनरेट होते हैं? फ्रॉम कमर्शियल सोर्सेस लाइक स्टोर्स में से निकलने वाला कचरा, ऑफिसेस से, वेयर हाउसेस से, और उसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या रहते हैं? पेपर्स, कार्डबोर्ड्स, प्लास्टिक, ग्लासेस एंड पैकेजिंग मटेरियल. सी दैट कमर्शियल वेस्ट, लाइक आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि कार्डबोर्ड है, पेपर्स एंड ऑल, ये सभी चीज़ें किस में आएंगे? कमर्शियल वेस्ट में. नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट, मीन्स आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इंडस्ट्री से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट. द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स, इंडस्ट्री ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग टर्म एज इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट में इंक्लूड्स हजार्डस एंड नॉन हजार्डस. Hazardous waste is very dangerous for the human health and also environment. Hazardous waste भी रहेंगे इंडस्ट्री से निकलने वाले कचरे में, एंड नॉन हजार्डस वेस्ट भी रहेगा. इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूड केमिकल्स. अगर केमिकल इंडस्ट्री है तो ऑब्वियसली वहाँ से केमिकल्स निकलेंगे ही, पेंट, सैंड, मेटल, और फ्लाई एश एंड ETP स्लज एक्सेट्रा, जो भी इंडस्ट्री से निकलने वाला है कचरा. यू हैव टू सी द इमेज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट लाइक दिस. एंड इंडस्ट्री से जो भी वर्क होता है उसके बाद निकलने वाला कचरा, उसको बोलेंगे इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा, दैट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट. नेक्स्ट वी हैव एग्रीकल्चरल वेस्ट. एग्रीकल्चरल वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग, एनिमल फार्म्स एंड पोल्ट्री फार्म्स. जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर वेस्ट मीन्स वॉस्ट, एग्रीकल्चर से निकलने वाला कचरा ड्यूरिंग एक्टिविटी ऑफ द प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग, एनिमल फार्म से निकलने वाला और पोल्ट्री फार्म से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट. एग्रीकल्चरल वेस्ट इंक्लूड, अब एग्रीकल्चरल वेस्ट में क्या क्या इंक्लूड रहेगा? जैसे कि क्रॉप रेसिड्यू एंड एनिमल वेस्ट रह सकते हैं, डेड प्लांट्स हैं, मैन्योर एक्सेट्रा. You have to see the image of agriculture waste management like this.
नाउ नेक्स्ट वी हैव बायोमेडिकल वेस्ट। अब आप सभी को पता ही होगा कि बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स हॉस्पिटल से निकलने वाला कचरा। बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर हॉस्पिटल्स आर द मेन कॉजेज फॉर जनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट which includes human tissue from surgery, bandage, hospital waste, dead animal, etc. बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, वहाँ से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट, हॉस्पिटल से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट इज अ मेन कॉजेज फॉर अ जनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट विच इंक्लूड, उसमें क्या क्या रह सकते हैं, उसमें जाहिर सी बात है ह्यूमन के टिश्यूज़ रह सकते हैं फ्रॉम सर्जरी करते वक्त, बैंडेज निकल सकता है, हॉस्पिटल वेस्ट एंड डेड एनिमल्स, बिकॉज एनिमल्स के भी हॉस्पिटल्स रहते हैं जहाँ से डेड एनिमल्स एज अ वेस्ट के रूप में निकल सकते हैं, लाइक दिस। अब बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेट किस तरीके से करते हैं, तो लाइक अ सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन अ कलर कोडेड बैग्स, जैसे कि येलो बैग्स हो गया, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट बैग्स, डिफरेंट वेस्ट इसमें डाले जाते हैं और कलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कलर कोडेड बैग के थ्रू। इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट इंक्लूड्स वेस्ट फ्रॉम स्कूल, कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, prisons, etc. Waste generated in this category is similar to residential and commercial type, मतलब इंस्टीट्यूशनल जो वेस्ट है, इंस्टीट्यूशन से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट जो है वो लाइक जनरेटेड इन दिस कैटेगरी सिमिलर रहती है कैटेगरी लाइक रेसिडेंशियल से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट और कमर्शियल टाइप से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट, बट सम टाइम मे कंटेन हजार्डस, बस कभी कभी क्या हो जाता है कि इन इंस्टीट्यूशनल से निकलने वाला वेस्ट में हजार्डस वेस्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिकल्स फ्रॉम दी लेबॉर्ट्रीज, जैसे कि इंस्टीट्यूशन से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट हो सकता है वहाँ लेबॉर्ट्रीज हो जहाँ से केमिकल निकले, तो केमिकल्स क्या रहते हैं, हजार्डस रहते हैं, जो कि हजार्डस वेस्ट है केमिकल, और ये जो है इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट ऑल्सो। इंस्टीट्यूशनल वेस्ट इंक्लूड, अब इंस्टीट्यूशन से क्या निकलेगा, तो कचरा कौन सा निकलेगा, पेपर, कार्डबोर्ड, पैकेजिंग एंड मटेरियल एक्सेट्रा। यू हैव टू सी द इमेज ऑफ द इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। इंस्टीट्यूशन में जनरली कलर बैग्स या डस्टबिन का यूज़ कर सकते हैं लाइक वेस्ट जमा करने के लिए। नेक्स्ट इज हजार्डस वेस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हजार्डस वेस्ट इज द वेस्ट विथ प्रॉपर्टीज़ दैट मेक इट डेंजरस। हजार्डस वेस्ट में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ रहती है जो उसको खुद में ही डेंजरस बनाती है और हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए एज वेल एज एनवायरनमेंट के लिए। हजार्डस वेस्ट कैन बी लिक्विड फॉर्म, सॉलिड एंड कंटेन गैसियस एंड स्लज। हो सकता है कि हजार्डस वेस्ट लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, या फिर उसमें गैसियस हो, गैसेस हो एंड स्लज फॉर्म में ये हो सकता है। हजार्डस वेस्ट इंक्लूड रेडियो एक्टिव वेस्ट। हजार्डस वेस्ट में कौन से वेस्ट रहेंगे, इंक्लूड रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, मेडिकल वेस्ट, फ्लेमेबल वेस्ट, वेस्ट ऑयल एंड chlorinated oil, etc. You have to see the image of hazardous waste is like this. Now e-waste. E-waste means it is term used to cover almost all types of electrical and electronic equipments. E-waste में क्या क्या रहेगा, electrical और electronic equipment waste रहेंगे that has or could come in a waste stream. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में बी डिस्कार्डेड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में हो सकता है डिस्कार्डेड कंप्यूटर्स रहे, ऑफिसेस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। सिंपली वी से ई वेस्ट मीन्स डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसलिए हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि ई वेस्ट मीन्स व्हाट, इट इज़ डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ई वेस्ट में हो सकता है वहाँ पे कंप्यूटर हो, रेफ्रिजरेटर हो, आप लोग जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं वो हो एज अ वेस्ट के रूप में, तो वो हो गया ई वेस्ट। नाउ दी सोर्सेस ऑफ सॉलिड वेस्ट, फॉलोइंग आर दी जनरल सोर्सेस ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट कहाँ से हमें मिल सकता है, तो रेसिडेंशियल से फर्स्ट, सेकेंड इज़ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस जैसे कि स्कूल्स हो गया और म्यूनसिपल ऑफिसेस हो गया,
हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। कमर्शियल सोर्सेस, इसमें रिटेल स्टोर रहेंगे, सर्विस स्टेशंस, ऑफिसेस etc. Now the summary of this particular session: first, we learn about introduction of solid waste. Second, definition of solid waste. Third, meaning of different solid waste. Fourth, domestic waste, commercial waste, industrial waste, agricultural waste, biomedical waste, institutional waste, and hazardous waste and e-waste. Sources of solid waste भी हमने देखा. Now the question generally asked in MSBT examination: first, define solid waste, define e-waste, agriculture waste, what are their constituents, what are the sources of solid waste, enlist the term used in solid waste, and say the classification of solid waste. Thank you.